ڈسٹرکٹ نیوز لیٹر مختلف اضلاع میں جاری ترقیاتی منصوبوں سے متعلق جامعہ رپورٹس پر مبنی آکاش وانی نیوز سری نگر کی پیشکش ڈسٹرکٹ نیوز لیٹر۔ ضلع نامہ کا تازہ شمارہ لے کر آپ کا میزبان شیخ تجمل حاضر ہے۔ آج کے ضلع نامہ میں ہم وسطی کشمیر کے بڑگام ضلع میں شیپ ہسبنڈری یا بھیڑ پالن شعبے سے متعلق بات کریں گے۔ سامعین، گزشتہ چند برسوں کے دوران جموں کشمیر میں بھیڑ پالن کا شعبہ روزگار کے ایک بہتر متبادل کے بطور ابھر کر سامنے آیا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جبکہ پورے ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی بے روزگاری کی شرح ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے پڑھے لکھے بے روزگار نوجوان زراعت اور اس سے منسلک شعبہ جات میں روزگار کے مواقع تلاش کر رہے ہیں۔ ایسے میں پوری یوٹی میں بالعموم اور وادی کے شمال و جنوب میں بالخصوص نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد بھیڑ پالن کے شعبے میں روزگار کے مواقع تلاش کر رہی ہے، اور حق تو یہ ہے کہ گزشتہ چند برسوں کے دوران کامیابی کی ایسی داستانیں رقم ہوئی ہیں جو باقی لوگوں کے لیے باعث تحریک ثابت ہو رہی ہیں۔ وسطی کشمیر کے بڑگام ضلع میں بھی گزشتہ چند برسوں کے دوران محکمہ شیپ ہسبنڈری کے زیر دست چلنے والی فلاحی اسکیموں کے توسط سے 10 شیپ ریئرنگ یونٹ قائم ہوئے ہیں، اور اس دوران یہاں درجنوں نوجوانوں نے سرکاری نوکریوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے خود روزگار کو ترجیح دے کر بھیڑ پالن کو اپنا پیشہ بنایا ہے۔ ضلع میں محکمہ شیپ ہسبنڈری کے زیر دست چلنے والی اسکیموں کے حال احوال جاننے کے لیے جب ہمارے بڑگام کے نمائندے شوکت شاہ نے ڈسٹرکٹ شیپ ہسبنڈری آفیسر بڑگام ڈاکٹر طارق احمد ملک سے استفسار کیا تو انہوں نے تفصیلات کچھ یوں فراہم کی۔ بھیڑ پالن شیپ فارمنگ پیشہ صدی سے چلا آ رہا ہے۔ شیپ از ایز ویلیبل ایز گولڈ۔ ضرورت کے وقت سونے کا کوئی آئٹم بیچ کر اپنی پوری ضرورت پوری کرتا ہے، اسی طرح ہمارا ایک شیپ بریڈر اپنی پوری ضرورت 1-2 بھیڑ بیچ کر پورا کر سکتا ہے۔ وادی کشمیر بھیڑ پالن کے لیے بہت ہی موزوں جگہ ہے، کیونکہ ہر طرف ہائی لینڈ پاسچرز اور گھاس کے میدان موجود ہیں۔ اگر ہم ضلع بڑگام کی بات کریں تو یہاں بھی بھیڑ پالنے کے لیے بہت ہی زیادہ پوٹینشیل موجود ہے، چاہے وہ خاص بیلوا کے علاقہ جات ہوں یا پھر خان صاحب، چاڈورا یا چار شریف کے علاقات۔ محکمہ شیپ ہسبنڈری بڑگام بھی اس صنعت کو بڑھاوا دینے کے لیے پچھلے کئی دہائیوں سے جان فشانی سے سرگرم عمل ہے۔ بھیڑ پالن کو فروغ دینے کے لیے شیپ ہسبنڈری ڈپارٹمنٹ بڑگام ایک ضلعی دفتر کے علاوہ 14 شیپ ڈیولپمنٹ بلاکس کے علاوہ 66 توسیعی مراکز سے اپنا کام چلا رہا ہے۔ آپ ہمیں بتائیے، جو یوٹی سطح کی جو ہماری اسکیمیں ہیں یا مرکزی معاونت والی اسکیمیں ہیں، تو آپ ہمیں ان کی پیش رفت کے حوالے سے بڑگام ضلع میں کیا کچھ ان کی پیش رفت ہے؟ شیپ فارمنگ فیملیز ہمارے جو بڑگام میں ہے 8,500 ہیں۔ شیپ اینڈ گوٹ پاپولیشن 2,70,000، گوشت کی پیداوار 17 لاکھ کیجیز، اسی طرح وول پروڈکشن جو اس سال ریکارڈ کی گئی 4.5 لاکھ۔ ہماری جو فلاحی اسکیمیں ہیں، بڑی اسکیم جو ہے وہ ہے ISDS اسکیم، انٹیگریٹڈ شیپ ڈیولپمنٹ اسکیم۔ تو اس میں 3 کمپوننٹس ہیں۔ سب سے پہلا جو بڑا کمپوننٹ ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ آف 20 ایوز یونٹ انڈر سبسڈی موڈ۔ تو اس میں ہم 20 بیڈ دیتے ہیں، تو 20 بیڈ میں ہم 1 لاکھ روپے سبسڈی دیتے ہیں۔ ہمارا دوسرا کمپوننٹ ہے اسٹیبلشمنٹ آف 10 ایوز یونٹ انڈر پارٹیسپیٹری موڈ۔ تو اس میں ہم بیڑ پالنے والے کو 10 بیڑ یہیں سے دیتے ہیں، تو پھر تیسرے سال سے 2 کر کے اس سے ہم وہ 10 بیڑ واپس لیتے ہیں۔ تیسرا جو کمپوننٹ ہے ISDS میں وہ ہے اسٹیبلشمنٹ آف شیئرنگ یونٹ، یہ شیئرنگ پلاٹ ہم دیتے ہیں جو اون کی کٹائی کے لیے، تو اس میں 75,000 کی سبسڈی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری ایک بڑی اسکیم ہے، پچھلے 3 سال سے چل رہی ہے HADP اسکیم، ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام۔ بڑا کمپوننٹ ہے ہم اسٹیبلشمنٹ آف 50 ایوز کمرشل یونٹ انڈر سبسڈی موڈ۔ تو ہم 50 بیڈ دیتے ہیں، تو 50 بیڈ میں 2.5 لاکھ روپے کی سبسڈی رہتی ہے۔ اسی طرح اس سال سے ایک اور اسکیم شروع کی گئی، وہ ہے JKCIP کمپیٹیٹونیس امپروومنٹ پروجیکٹ۔ تو یہ SC ST اور ہماری جو چوپان بھائی ہیں ان کے لیے رہتی ہے یہ اسکیم۔ تو اس میں بھی 2 کمپوننٹ ہیں۔ ایک کمپوننٹ ہے اسٹیبلشمنٹ آف 10+1، یعنی ہم 10 فیمیل اور 1 میل شیپ دیتے ہیں، تو اس میں بھی 1 لاکھ روپیہ سبسڈی رہتی ہے۔ تو دوسرا کمپوننٹ جو اس میں رہتا ہے وہ ہے انٹرپرائز سپورٹ، وہ ہم دیتے ہیں اس بریڈر کو جو جس کے پاس شیڈ ہو، تو اس کو ہم اپ گریڈ کرنے کے لیے اس میں بھی 1 لاکھ روپے سبسڈی رہتی ہے۔ اگر پھر ہم ٹوٹل ملا کے بتائیں گے تو پچھلے سال ہم نے 2024-25 میں ہم نے 150 یونٹ اسٹیبلش کیے لاسٹ ایئر۔ تو اس میں ہم نے سبسڈی جو ریلیز کی ہے 1,88,89,000، پچھلے سال کی بات ہے۔ تو اس سال جو ہم نے ابھی تک
क्योंकि अभी चल रहा है, अभी तक अभी 10-20 दिन है, तो अभी तक हमने 266 यूनिट इस्टेब्लिश किए हैं, 266 अंडर डिफरेंट स्कीम्स। तो इसमें हमने 2.5 करोड़ रुपए सब्सिडी फराहम की है। का मतलब है कि जो बेरोजगार अशखास हैं वो रोजगार कमाने के मौके उन्हें फराहम किए जाते हैं आपके डिपार्टमेंट से। तो आप हमें बताइए, जो आला नस्ल के भेड़, जो एक तो होता है रिवायती जो हमारे पास होते हैं, क्या आला नस्ल के भेड़ों में और रिवायती भेड़ों में कुछ फर्क है? तो किस तरह के फर्क है और क्या कुछ फरोग दिया जा रहा है इन आला नस्ल के भेड़ को? के भेड़ हमारे पास मौजूद है। हमने पिछले 4 साल पहले भी हमने ऑस्ट्रेलिया से हमने इम्पोर्ट किए हैं, ऑस्ट्रेलियन मेरिनो मेल शीप हमने वहाँ से मंगवाई, इम्पोर्ट किए। तो इसको लोकल जो शीप है तो उसमें इतना ग्रोथ नहीं होता है जितना हमें क्रॉस ब्रेड शीप में ग्रोथ रहती है। हमारा 3-4 महीने का भेड़, तो जो अगर आला नस्ल का होगा तो उसका तकरीबन वजन हो जाता है 4 महीने 5 महीने के बाद होता है 30-40 किलो का होता है। तो इसमें जो पहले 30-40 साल पहले हमारा जो भेड़ होता था वो 2 साल तक 15-20 किलो तक होता था, लेकिन आजकल 3-4 महीने का ही 30-40 किलो का हो जाता है। तो अब हमें बताइए, जो मांग और सप्लाई में अभी भी इतना फर्क फिर क्यों दिखा जाता है? अगर इतनी स्कीमें सरकार चला रहा है, अभी भी खपत है। ये है सही, लेकिन अभी पिछले 2-3 साल से जो HAD प्रोग्राम चालू किया गया तो इससे हमें जो डिमांड और सप्लाई तो उसमें थोड़ा फर्क आ गया। पहले हमें 50-50 तकरीबन 50% यहाँ प्रोडक्शन होती थी, अब तकरीबन 60% से ज्यादा प्रोडक्शन यहाँ पर गोश्त की हो रही है। इसका मतलब है कि फर्क आया है इन स्कीमों के जरिए। 2-3 साल के बाद आप देखेंगे इंशाल्लाह इसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। मुझे लगता है 70-80% तक हम यहाँ से गोश्त पैदावार कर सकते हैं, क्योंकि जदीद तकाज़ों के एन मुताबिक हमें जो स्कीमें जो आ रही है, हमें अपनी जो तब्दीलियां इसमें भी लानी है ना सर? तो अब हमें बताइए, जो कुछ वबाई अमराज होते हैं भेड़ों में, तो उस हवाले से आप किस तरह से इन बीमारियों पर काबू पाते हैं? हमारा ये एक रूटीन प्रोग्राम, हमारे पास वैक्सीनेशन डोजिंग जो तो चलता रहता है। तो मुझे लगता है कि जो पहले हुआ करती थी बहुत सारी बीमारियां, तो अब मुझे लगता है इसमें हमने काफी हद तक काबू किया है। हम मुख्तलिफ हमारी जो फील्ड अमला होता है तो फिर हमारी मुख्तलिफ बीमारी के खिलाफ हमारी वैक्सीनेशन चलती रहती है, चाहे वो शीप पॉक्स हो, चाहे वो FMD हो या कोई भी बीमारी हो, इसके खिलाफ हमारा अमला बिल्कुल सरकारी अमल होता है। हाईब्रिड ग्रास, उसको क्या महकमा उस हवाले से भी कुछ देख रहा है कि किस तरह हम कहां से हम घास जो है उसकी पैदावार को बढ़ाने की खातिर कोशिशें करें? बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन के लिए भी हम बिल्कुल जो जमींदार हैं इनको हम सीड के लिए देते हैं, मुख्तलिफ जो आला किस्म के घास हैं तो वो सीड के लिए उनको फराहम करते हैं ताकि उनके जो घास की पैदावार है भेड़ के लिए, भेड़ पालने के लिए, तो उसमें हम फराहम करते रहते हैं। हर साल तकरीबन 500-600 तक भी हम जमींदारों को ऐसे सीड के लिए देते रहते हैं। आप हमें बताइए, क्या मैसेज रहेगी खासकर उन नौजवानों के लिए जो पढ़े लिखे हैं और अभी घरों में बैठे हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? आम लोगों से खासकर पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों से यही मैसेज रहेगी कि आगे आएं और इन जो फलाई स्कीम मैंने पहले बताई उनका फायदा उठाकर खुद रोजगार कमाकर दूसरों के लिए भी रोजगार का सबब बने। आखिरी सवाल आपसे हमारा रहेगा कि जो शीप सेंटर्स हैं, क्या उनको बढ़ाने की खातिर क्या कुछ महकमा कोई प्रोजेक्ट बना रहा है? बिल्कुल, जितने हमारी एप्लीकेशन आती है, मैं कहूँगा जितने मैंने आपको 13 बताया कि कितने हमें यूनिट्स एस्टेब्लिश किए पिछले साल या इस साल, तो एप्लीकेशन जो दरखास्त है वो बहुत काफी ज्यादा हमें मिले हैं, मुझे लगता है हजारों में। मुझे लगता है कि आइंदा सालों में इस पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गौर कर रहा है। मुझे लगता है कि आइंदा साल हमें टारगेट और ज्यादा मिलेगा और इंशाल्लाह और ज्यादा जवान इसमें मुस्तफिद हो जाएंगे। समीन, हम सबको मालूम है कि हमारे सियासी नुमाइंदे जो अवाम के नुमाइंदे होते हैं वो मुख्तलिफ फलाही स्कीमों की तरतीब और फिर उनकी अमलावरी में एक अहसन और मुतहरिक रोल अदा करते हैं। बड़गाम जिले में शीप हस्बेंड्री महकमे की जानिब से अमलाई जा रही फलाही स्कीमों के तवस्सुत से भी हमारे अवामी नुमाइंदे खासा मुतहरिक और सरगर्म रोल अदा कर रहे हैं। हमारे बड़गाम के नुमाइंदे शौकत शाह ने MLA चाडूरा अली मोहम्मद डार से इसी ताल्लुक से बात की तो वो यूं गोया हुए। ये जो शीप हस्बेंड्री का महकमा है या सनत है, ये जी मशत के लिए एक अहम जरिया आमदन है।
ये सनत किसान के लिए रोजगार का जरिया भी है। हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब है जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, ये इस सनत को बढ़ावा देने में काफी दिलचस्पी रखता है और महकमे में काफी फायदेमंद स्कीमें हैं जिनका फायदा किसानों को, खासकर बेरोजगारों को उठाना चाहिए, क्योंकि इस कारोबार के लिए बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट और नफा अच्छा है। अगर मैं बड़गाम की बात करूंगा, बड़गाम में काफी करेवा जमीन मौजूद है, यानी भेड़ बकरे जो है इनको पालने के लिए आसानी है, जो मुफ्त के बराबर खर्चा है। वहाँ की जो जमीन मौजूद है काफी मतलब गुंजाइश है, उस पर हमें खर्चा नहीं आएगा। तो ये एक खास आबादी है इस पर इस वक्त भी, मगर बेरोजगार नौजवान है। आप जानते हो ये जो पिछले 35 साल से यहाँ हालात है कि गुर्बत कितनी है, मतलब यहाँ कमर तोड़ दी है महंगाई की। सही। तो या बेरोजगारी में काफी इजाफा हुआ है। सही। तो लिहाजा रोजगार अगर हम चाहेंगे, उस स्कीम को हम अपनाएंगे, तो जो स्कीमें गवर्नमेंट ने रखी है उसका फायदा हम उठाएंगे। मुझे लगता है रोजगार में हमें काफी मदद देगा। लिहाजा हमारे जो बेरोजगार नौजवान हैं हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। खर्चा भी कम है, मतलब इसमें वो बहुत ही बड़ा रकम जो एक कारोबार के लिए हमें जरूरत पड़ता है। आप जानते हो यहाँ कारोबार मतलब यहाँ वसाइल है क्या है, पड़ा है। सही सही। तो यहाँ मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा है, ये सनत सबसे ज्यादा फायदेमंद है। गोश्त की डिमांड कितनी है यहाँ मुल्क में? अगर गोश्त की जरूरत पड़ती है तो वो जम्मू कश्मीर में है, तो हम देश तो कहाँ से लाते हैं, हम तो बाहर से मंगवाते हैं, तो ऊन की जरूरत भी है। अच्छा, इसमें वो बहुत से फवाइद है। अगर हम चाहे देखेंगे गोबर जो से हासिल होता है उससे कितना फायदा मिलेगा। सही। हमें अपनी जमीन को खाद मंगवाने की जरूरत नहीं है। सही सही। खाद भी, और उससे बेहतर पैदावार भी पैदा हो सकता है। तो आपकी क्या मैसेज रहेगी बेरोजगार नौजवानों के लिए बड़गाम जिले में खासकर? बस मैं गुजारिश करूंगा इनको, इन स्कीमों का फायदा उठाइए, उनमें काफी मतलब सब्सिडीज है, तो हमें उस कारोबार की तरफ तवज्जो देना चाहिए। तो नौकरी से ज्यादा फवाइद इसी में है। तो लिहाजा मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि वो अपने आप खड़ा हो जाए, स्कीमों का फायदा उठाए, और गवर्नमेंट को भी कुछ मुश्किलात है जिनकी वजह से फिर नफरत बढ़ती है इन नौजवानों को। यानी जब वो करना चाहते हैं, उनकी जरूरत पड़ती है, तो कुछ मुश्किलात पैदा होती है वहाँ पर। इनको आसान बनाने के लिए जो इनके कवायद ज़वाबित है, इनको आसान बनाना चाहिए, बिना किसी परेशानी के लिए रोजगार इन स्कीमों का, बेरोजगार इन स्कीमों का फायदा उठा सके। इसके साथ ही ज़िलानामा का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर हुआ। निगरान आला अशफाक अहमद शाह, तरतीब व तहजीब कौशकी कश्यप, रिकॉर्डिंग व एडिटिंग नूरुलैन इशरत, तहरीर व आवाज़ शेख तजम्मुल, पेशकश रीजनल न्यूज़ यूनिट आकाशवाणी श्रीनगर।